Hello everyone, today we are going to do chapter exponents and powers, and you will see this chapter in your class 7 book. This chapter has been given, and we will understand the basic things of exponent and powers here. So now let's start. What is exponent? Exponent होता क्या है? What is exponent? We always refer exponent by e to the power x. E to the power x. What is e? E is any base, and power x means any power. Like e to the power x की जगह I can write it like 2 to the power 4. So this is the base and this is the power, and this will called exponential form. किसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म? अगर आप इसको पूरा एक्सपेंड करके लिख दो तो ये क्या बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड वी विल गेट हियर 16. सो 2 to the power 4 is the exponential form of 16. Okay, this is the exponential form of 16. So you have to understand this thing. What are exponent and what are power? Exponents are base. Here 2 is base and 4 is power. Why 4 is power? Because 2 2 2 2 4 is repeated 4 times. Okay, now we will understand how to convert any number in exponential form. Like there has been given 10 into 10 into 10. How will you write this in exponential form? We will write how many zeros are there, how many tens are there. You can see there are 3 tens, so 10 to the power 3. This is exponent and this is power. Now another number we will try. 1. How many zeros are there? 1 2. This number 1 2 3 4 5 6. So this whole number will be written in exponential form like 10 to the power 6. You will just count the zeros. Now this number, it's a very big number, and keep it mind that why we will use exponent. हम exponent use क्यों करते हैं? जब कोई बहुत बड़ा नंबर होता है and it is very difficult to speak that number. It is very difficult that how you will speak that number. So we will use exponential form, and that makes easy for any number to speak. Like you can see this, it's a very big number. So and if we will write this number in exponential form, it become easy to understand. Like see 2, here is 2, we will write here 2. Multiply sign लगाएंगे. How many zeros are there? 1 2 3 4 5 6 7. 2 into 10 to the power 7. आपको ये 2 के लिए तो सोचना ही नहीं है, बिकॉज यहाँ 2 है तो we are writing here 2 and into, and this thing, these zeros you will write in exponential form to the power base, to the base power, to the base 10. Like 4000. How will you write it? 4 है, we are writing here 4. Multiply का sign लगाया. How many zeros are there? 3 zeros. So 10 to the power 3. So any big number can be written in exponential form. So it will be very easy to recall or speak that number. Now we are going to solve exercise 13.1 from class 7 book. आप अपने बुक में देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. नाउ आई नो यू कैन डू दिस. 2 to the power 6. Just expand this. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 at 6 times we have done, and we are getting the answer 64. How are you getting 64? 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 2 to the 32, 2 to the 64. And the similar way I have done this here also. 5 to the power 4. We will write 5. We will write 5 4 times. 4 times नहीं, sorry, 4 times बोलेंगे तो 5 into 4 हो जाएगा. We are writing this number. Power is 4. तो 5 into 5 into 5 into 5. And when you will multiply these 5, you will get 625. Second question आपकी बुक में दिया हुआ है. Express the following in exponential form. Again, already I have explained you. 6 to the power, how many 6 are there? 4 6. So 6 to the power 4.
दिस नंबर ए 4 टाइम्स ए, बी 2 टाइम, बी हमारा 2 बार है, एंड सी, सो a टू द पावर 4, b टू द पावर 2 एंड c में तो कोई पावर नहीं है। जब कोई पावर नहीं होती है तो आप ये याद रखना कि हम 1 पावर अपने आप मान सकते हैं। अगर आप 1 पावर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या उन्होंने बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको ये इतना बड़ा नंबर है ना 512, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप पहले भी सीख चुके हो छोटी क्लासेस में। तो देखो मैंने ये प्राइम फैक्टराइज करा है 512 को, पहले 2 से करा। प्राइम फैक्टराइज करना मतलब डिवाइड करते जाना। 512 को हमने 2 से डिवाइड करा, वी आर गेटिंग 256। आपको जब तक यहाँ पे फर्स्ट डिजिट इवन मिलती रहेगी आप 2 से डिवाइड करते जाओ। यहाँ 2 था, वी आर डिवाइडिंग बाई 2। अगेन यहाँ 6 है, इवन डिजिट है, वी विल डिवाइडेड बाई 2। तो हम 2 से करते जा रहे हैं। 2 से करते करते 2 से 128 को करा 64, 64 को 2 से करा 32, 32 को 2 से करा 16, 16 को 2 से करा 8, 8 को 2 से करा 4, 4 को 2 से करा 2 एंड 2 को 2 से करा तो 1। हमें कब तक करते जाना है? जब तक हमको फाइनली 1 नहीं मिल जाता। Now we are getting these 2. So we are writing in this way 2. How many 2s are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We are writing in this form 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 9 बार हमने इसको लिखा तो पावर ये क्या बन गई? 2 to the power 9. The same way I have done this sum also. 3125 नंबर था हमारा, तो हमने इसको 5 से करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब फर्स्ट प्लेस पे 5 या 5 होता है तो 2 से तो जाएगा नहीं। सो वी विल डू इट बाय 5। करते करते हमने यहाँ पर 1 मिल गया हमको। सो हमने इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। हाउ मेनी 5s आर देयर? 1 2 3 4 5, तो 5 टू द पावर 5। नाउ ये दिस इज वेरी सिंपल। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एनसीईआरटी बुक में 13.1 एक्सरसाइज में। 4 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 4 कौन सा बड़ा है? वेरी वेरी इजी। आपको इसमें पावर किसकी बड़ी दिख रही है? पावर कौन सी बड़ी दिख रही है? ये वाली। तो हमारा 3 टू द पावर ग्रेटर हो जाएगा 4 टू द पावर 3 से। वेरी इजी। जिसकी भी पावर बड़ी है वो नंबर बड़ा होगा। 2 टू द पावर और 10 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 10। तो our 2 to the power 10 will be greater than 10 to the power 2. Here 2 to the power 8 और 8 to the power 2, obviously जिसकी पावर बड़ी है तो 2 to the power 8 is greater than 8 to the power 2. So इसमें आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पावर देख करके बता दोगे दिस नंबर इज बिगर और नॉट। एंड इफ यू विल सॉल्व दिस, अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो यू विल सी दिस आंसर विल कम बिगर देन दिस आंसर। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। आपको ये सम दिया है 648 सम दिया हुआ था। उसने बोला था इसको क्या करना है, हमको प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के फॉर्म में करना है। प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के फॉर्म में पहले तो उसको प्राइम फैक्टराइज मैंने कर दिया। सो आपने देखा मैंने कैसे करा, करते जाओ इसको। दिस इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू इट, आई नो इट। अब आप देखो आपको कितने 2 मिल रहे हैं, 1 2 3 एंड 3 कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले सो वी गेट, आप इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लगा लो। ये लगा दिया मैंने। अब आप गिन लो 2 की पावर 2 कितने हैं, 3 हैं, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 कितने हैं, 1 2 3 4, 3 टू द पावर 4। सो दिस इज़ वेरी सिंपल सम। आपको कोई भी बड़ा सा नंबर हो और वो कह रहा है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में उसको पावर्स के प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के फॉर्म में लिखो, तो आपको पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। आफ्टर देन आप उसको पावर के फॉर्म में इजीली बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपकी बुक में, 2 इंटू 10, इसको सिंप्लीफाई करना था हमने। नथिंग टू डू, इट इज़ वेरी सिंपल। 2 इंटू 10 कितने बार है, पावर 2 है, 10 इंटू 10 हमने सबको मल्टीप्लाई करा, वी विल गेट 200। द सेम वे 3 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सारे आपने मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट
144. नाउ अब आपको सम करना है, जिसमें आपको दिया हुआ है, आपको नंबर माइनस में दिया होगा, और इसमें एक रूल पहले आप समझ लो. रूल नंबर 1 है, इफ देयर इज नंबर विद माइनस साइन, अगर कोई नंबर माइनस साइन के साथ में है एंड पावर इज इवन, और पावर अगर इवन है, तो आपका जो आंसर है, आप आंख बंद करके उस आंसर को पॉजिटिव ही लिखोगे. ये नेगेटिव को देख के नेगेटिव नहीं लिखना है आपको सिर्फ ये पावर देखनी है. ये पावर इवन है तो आंसर हमारा 16 आएगा. खत्म. -2 की पावर 6 आप यहाँ पर देखो, पावर हमारी इवन है. आप इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 2 × 2 × 2 × करोगे 64 आ जाएगा. आपको कुछ भी नहीं करना, होने दो इस माइनस को. आपको सिर्फ ये देखना है कि पावर इवन है कि नहीं है. इफ देयर इज पावर इज इवन, our answer will be positive or with plus sign. सेकेंड रूल में आप देखो, इफ देयर इज अ नंबर विथ माइनस, इसमें देखो नंबर माइनस है और पावर ऑड है. सेकेंड रूल ये है कि नंबर अगर माइनस है एंड द पावर इज ऑड, अब आप ध्यान रखना, जब भी पावर ऑड होगी आपका आंसर माइनस में ही आएगा. -4 × -4 × -4, आप गिन भी सकते हो कितने माइनस हैं, 1 2 3. आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके माइनस कितने हैं, 3 है ना, ऑड है ना, तो आंसर आपका माइनस में आएगा. ये वाला देख लो आप. अब आपका ये क्वेश्चन है, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपका किया है. ये इसमें ये देखो -3⁻², पता ही था ये इवन है तो आंसर तो इसका पॉजिटिव है. ये इवन है तो इसका आंसर आप इसको करोगे 5 × 5 पॉजिटिव है, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने. ये वाला सम आप देखो -2⁻3, तो ये तो हमारा ऑड पावर है, तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, -8. ये ऑड पावर है, इसको जब आप खोलोगे 10 × 10 × 10 तो आपका आंसर बनेगा -1000. बट आप फिर से गिनो कितने माइनस हो गए, 1 2. देखो 2 माइनस है ना, तो ये इवन हो गए माइनस. अगर आपने माइनस, अब जब आपका कभी ऐसे आए तो आप माइनस गिन लिया करो. हाउ मेनी माइनस आर देयर, 1 2. इवन नंबर ऑफ माइनस, पॉजिटिव आंसर. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर प्लस में आ जाएगा. वैसे भी माइनस माइनस प्लस ही होता है. और इससे भी इजी वे है कि आपका कोई भी नंबर है, सपोज 2 × -3 × -4. अब आपको कंफ्यूजन हो रही है कि इसका आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा. आप गिन लो कितने माइनस हैं, 1 2 3. 3 माइनस है, इसका मतलब आंसर हमारा माइनस में आएगा. और इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 = 4, 2 3 = 6 एंड 6 4 = 24. बस. और अगर इसी जगह पे मैंने ये 2 × -2 × -2 × -2, आप यहाँ पे फिर माइनस काउंट करो, कितने माइनस हैं, 1 2 3 4. 4 माइनस है, यानी कि आंसर इसका प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर इवन है. माइनस जब हम काउंट कर रहे हैं तो इवन नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 2 × 4 2 × 8 2 × 16. तो आप माइनस काउंट कर सकते हो. दिस इज वेरी सिंपल. अब ये अगेन आपका ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8. इसमें आपको कंपेयर करना था. कंपैरिजन में फिर से वही बात आएगी. ये नंबर आपका दिया था 2.7 × 10⁻12, फिर ये सेमी वो लगा हुआ है. इसके बाद आपका दूसरा नंबर है 1.5 × 10⁸. आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, विच वन इज बिगर. तो इसमें फिर से वही चीज़ आप देखो, जो नंबर हमारा जिसकी पावर ज़्यादा है वही नंबर हमारा ये नंबर बड़ा होगा. दिस विल बी बिगर नंबर. सो 2.7 × 10⁻12 will be greater than 1.5 × 10⁸. So this is all about exercise 13.1 from class 7 book we have solved. Now in another video we will do laws of exponent and we will solve exercise 13.2. So thanks a lot.